ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਲ ਇਹ ਵਰਲਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਲਾਪਾਲੀ ਕੀਤੀ ਏ। 1500 ਘਰਾਨਾ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਲਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਕੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 3 ਦਿਨੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਪਿਓ ਦਾਦਿਓ ਪੜਦਾਦਿਓ, ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੰਪਲ ਭਾਟੀ ਦੀ ਏ 29 ਯੂਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ 450 ਘਰਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡੀ ਰੋਡ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪਰੀਨੇ ਚ ਬਣੇ ਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਮਲਕੀਅਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਵੇ ਕੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਭ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਪਲਾਜ ਯਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮਰੂਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝੱਡੇ ਚੁੱਕਣ ਰੱਸੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਨ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਗਈ ਹੋ ਕਹੋ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਟੂਰੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲਿੱਤਾ, ਫਾਇਲ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸੋ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੋ ਜੁਮਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ 8 ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਮਾਨੇ ਪਏ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਣਾਣੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਤਾਰੇ ਦਮ ਹੋ ਗਏ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੁਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ? 32 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੂਵੀ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕੇ ਡਰੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਬੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਪਕਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਟਿਆ ਨਾ ਮਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਘਰ? ਆਪ ਦਲੇਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੋ ਲਈਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜੰਨਤ ਸਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਬਣਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਖਵਾਜਾ ਸਰਫੀਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜੰਪਲ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਮਾਲੇ ਜੰਪਲ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੋ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਤਾਜ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਕਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਕਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ? ਸਕੇ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਆ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ
ਨਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤੇ ਭਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਨਾ 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 ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਤੇ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਨ, ਬੜਾ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਈ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਹਾਸ਼ਾ ਮਾਲ ਥੱਲਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਮਾਲ ਥੱਲਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹਨੇ ਕਿ ਜਾਨਣ। ਸਾਡੀ ਚ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਚਿੜੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਢਾਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੇਰ ਢਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਆਰਡਰ ਸਖਤ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤੂਤ ਖੋਲਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, एक काउंटर नैरेटिव, एक आर्गुमेंट, एक काउंटर नैरेटिव, काउंटर आर्गुमेंट। दूसरा नजरिया ये है कि एक तो हम नाजायज जगह पे थे, आपको हमने बार बार कहा कि आप यहाँ से अपने जानवर हटाएं, अपनी दुकानें करें। मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ। आप अपनी दुकानें करें, आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने उसमें बल्कि कोऑपरेट नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोऑपरेट नहीं किया। जब हमने आके आपकी दुकानें नाजायज़ दुकानें मिसमार कर दी, आपने जानवरों का रोला डाल दिया कि इतने बंदे गए, इतनी खवातीन गई, 2 औरतें घर में बैठ के गम से मरी। ये इस वक्त दूसरा काउंटर नैरेटिव है चल रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਧਾਰ 'ਚ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ 3 ਚੜੇ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਲੀਅਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਠਾ ਇੱਥੋਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। महकमा को आपको 1 लाख 1.5 ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੁਛ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕੇ ਡਰੋ। जाली पर्ची, बुरा ना मानना, जाली पर्ची तो नहीं है, इंक्वायरी करो। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਲੀ ਹੈ। ਅਜੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੜੋ ਜੈਲੀ ਹੈ। ਅਜੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 1,60,000 ਰੁਪਏ 1,60,000 ਰੁਪਏ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਾਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ, 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਪੜਿਆ। ਅਪਰੂਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੱਕਾ ਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 50 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੌਫ ਕੇ ਡਰੋ। ਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਲੱਗ। आपने एग्रीमेंट दिखाया नहीं उन्हें? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। लोग उनके ਐਡੀ ਤੱਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਚਰਾ ਮਰਦੀ ਉਠਾਈ ਕਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਇਮੇਜ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵਧੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੱਕ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਹਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਕੀ ਰਾਣੀ ਸਰਕਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ
ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ? ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਾ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ છો ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਲੋੜਦਾ ਜਾਨ ਸੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਭਾਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੱਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਭਾਟੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਲ ਗਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੰਪਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਭ ਵੱਡੇ 350 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਾ ਸਲਾਉਦੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਉਦੀਨ? ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਔਕਾਫ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਔਕਾਫ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਔਕਾਫ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਲੋਡ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ वो उसको छुड़ाओ यार, छुड़ाओ वो बंदा ना और ना करे इसको जाने दे यार। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ उन्हें वीडियो ना बनाए, उसको जाने दे यार। और यार उन जान दे उस्ताद जा यार जा उस्ताद जी तुसी जाओ उस्ताद जी तुसी चले जाओ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਾ उस्ताद जी जाओ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਓ ये जो दुकानदार है इनके क्या 10 कारोबार है क्या सोच के इन्होंने सोचा है कि यार ये इनको मलिया मेट कर देंगे ये नहीं सोच के आया कि यार सुबह ये घर में खाना कैसे लेके जाएंगे। ये सारे दुकानदार ऐसे हैं कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो उधार माल लेके अपनी दुकानों में डाला हुआ है वो बेचते हैं उनको पैसे दे देते हैं वही मुतबादिल इस तरह कई चेंज तो ऐसे होंगे उनकी बहनों की बच्चियों की शादी होगी अगले माह। भाईजान कई बेवा ऐसी हैं यहाँ पे 40-50 बेवा लोग ऐसे बेवा औरतें हैं जिनके मियाँ मर गए हुए उनके बच्चे छोटे छोटे उन्होंने किसी भाई को किराए पे दे दी दुकान वो आगे चला के उनको भी चला रहा है अपना सर्किट भी चला रहा है। इस मार्केट से बहुत लोग बड़े खानदान जुड़े हुए हैं 1000 से ऊपर खानदान इस मार्केट के साथ जुड़े हैं। रजिस्टर्ड दुकान है देखो जरा ਇਹ ਦੇਖ ये नंबर लगा के गए हैं ये किस महकमा औकाफ की प्लेट है ये महकमा औकाफ की प्लेट है जुन्नरों के ऊपर नंबर लगा हुआ है इसी नंबरों पे हमें किराए आते हैं हमारी जेबों में रसीदें पड़ी हैं 25 साल से किराया दे रहे हैं 25 साल पहले मेरी बात सुने एग्रीमेंट पढ़ लें साल बाद उन्होंने कहा जी 3 साल बाद आपका 25% बढ़ेगा तो जिस वक्त में महंगाई नहीं थी उस वक्त में किराया यही 100-150 ही था उस हिसाब से 25% 3 साल में बढ़ते बाजारों में आ गए ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਈਏ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आप अपने बेटे के लिए हीरो ही है ना। मैं तो उनके हर बाप अपने बच्चों के लिए हीरो मेरा बेटा भी सही बात था। तो क्या दिखाएं बच्चों को कि ये हमारा कबाड़ा हो गया है तो वो मोटरसाइकिल क्या सोचेंगे हमारे बच्चे कि ये हमारी गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे बाप बड़ों के साथ ये किया है वो बड़े होके क्या सोचेंगे इन गवर्नमेंट वालों के बारे में वो सारी ज़िंदगी गालियाँ निकालेंगे बुरा भले ही कहेंगे इनको सर लेकिन हुकूमत फिर ये भाईजान नाराज हो जाता है। हुकूमत तो कहती है हम आपके लिए कर रहे हैं हमारे लिए मेरी बात सुन हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये लाहौर गाड़ी को खूबसूरत बना रहे हैं। खूबसूरत इस तरह बनाते हैं लोगों के जनाजों पे गुजर के बनाते हैं लोगों की कब्रें बना के निकाल के खूबसूरत बनाएंगे आप जब लोग ही नहीं रहेंगे तो खूबसूरती किसने देखनी है लोगों की कब्रें निकाल के खूबसूरती बनाएंगे खूबसूरती के लिए पूरा पाकिस्तान इतना बड़ा पड़ा हुआ है जाके कहीं नया शहर आबाद कर लें पार्किंग बाद जो बनाओ पहले साड़ी कब्रें बना दो
ਇਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਪਏਗੀ आगे है सर पार्किंग जरूरी है सर मैं तो नहीं बनाई ना मैं सर, मैं तो एक ईंट भी नहीं उठा सकता ना बना सकता हूँ ये तो और बाबे इख्तियार है बुरा ना मानिएगा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਤੇ ਗਈਆਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹਟੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੀ ਗਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ 3 दिन हो गए सर जी ये सर, बंदे मैं एक भेजते सेकंड- मैंने 3 दिन मोटरसाइकिल का क्या रेट लगा आपकी मेरी मोटरसाइकिल का 1,20,000 रुपये लगे अब वो बेच देंगे 23 मॉडल मोटरसाइकिल है मेरी अब वो बेच देंगे जाहिर है बेचूंगा कोई 5-10 हज़ार कोई और ऊपर लगा देगा तो बेच ही दूंगा हमारा और कोई वसीला ही नहीं है तो- हम तो शुरू से हमारे बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे हमारे पास ट्रांसफर तो होगी बुरा ना मानिएगा अगर मैं आपको एक मशवरा दूं एज ए ब्रदर वो मोटरसाइकिल बेच के आपके कोई छोटा मोटा कोई ठेला लगा लें कुछ कर लगाने तो मैं तेरी ठेला लगा देता हूँ मुझे बाद में पीरा पकड़ के ले जाएगी यही होगा ना ठेला लगा देता हूँ मुझे लगा दे ठेला किसी जगह ठेला लगवा दे मैं आप जाके मंडी से कोई सब्जी फल लेके बेचना शुरू कर देता हूँ लगवा दें मुझे ठेला इसी आप जगह- लगवा दें इसी जिधर मर्जी लगवा दें इधर ही लगवा दें कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ना कोई 1,000-2,000 जाऊंगा तो बच्चों के लिए खाना लेके जाऊंगा तो इसका मुतबादल कोई सोचा है हुकूमत ने दिया होगा कुछ ना कुछ तो कहा होगा कोई नुमाइंदा नहीं है हुकूमत की हमें हुकूमत ने हौसला भी नहीं दिया कि हौसला ही दे दें कि भाई आप टेंशन लें हम आपके पास आ रहे हैं कोई बातचीत करेगा अभी तक कोई इदारे का कोई नुमाइंदा कोई नहीं हमारे पास अभी तक पहुंचा अनाउंस करेंगे इनको कि जो हमें आके ये कहते कि भाई आप टेंशन ना लें हम आपके साथ हैं बेटियां ने पेड़ पौधा ने तंग किया हर बंदा सामान चुक के लगे ये तो अपने LDA वाले आए हैं उन्होंने अपने बंदे लगा के सामान उठा उठा के लेके जा रहे हैं ताले भी उन्होंने तोड़े हैं रात को कितना जानवर जो उन्होंने वो पीछे नाले में नाले में फेंक फेंका दिया कि किसी को पता ना चले तोड़े इससे। भर भर के छोटे छोटे बच्चों को 100-100 200 रुपया दे रहे हैं एक परिंदा लाओ एक बिल्ली लाओ हुई है जो भी है वहाँ पे इकट्ठी कर करके वो नाले में फेंकते रहे डब्बे लगे बैठे रहने बाबा हाँ डब्बे लगे बैठे। महकमा खुद आया वाइल्ड इंस्पेक्टर ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा है हमारी हम तो बेबस हो गए हैं हमारा बस नहीं है हमें तो कोई जगह मिले हम वहाँ पे दफन हो जाए सिर्फ अपने बच्चे नज़र आ रहे हैं कि यार क्या करेंगे हम इनका क्या बनेगा अभी सारा तमाशा तो सारे लगा देंगे अभी इधर सारे को तैयार है सिर्फ अपने बच्चे नजर आते हैं आपके लिए सब अफसोसदा हैं सारी अवाम जहाँ जहाँ भी ये पैगाम जा रहा है ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं जा रहा मैं कहता हूँ सियासी मसले अलहदा कर दो हुकूमत ने सुनो मैं मरियम नवाज साहिबा ने 1.5 लाख घर बना के दिया 1.25 लाख घर बना के दे रही है आप लोगों को घर बना के दे रहे हैं जो उनके बने हुए हैं उनको तबाह कर रहे हैं जो बने हुए हैं उनको तबाह कर रहे हैं जो सैलाब ज़दगान की आपने इतनी मदद कर दी है आपके सोशल मीडिया के मुताबिक तो जो बेचारे अपनी मदद के तहत उनको आप तबाह करी जा रहे हैं सैलाब ज़दगान समझ के हमारी मदद करते हैं यही समझे कि अभी सैलाब की जर्द में आ गए इस तरह ही हमारी कोई मदद करते हैं हमें कोई इसके मुतबादल कोई बुरा ना जगह दें। मानिएगा बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि मैं को तैयार हूं मेरा दिल करता है मैं भाई दुनिया क्या करूं कुछ है ही नहीं कुछ नज़र ही नहीं अंधेरा ही नज़र आ रहा है सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है आज मोटरसाइकिल भेज दूंगा मेरा मकसद है मेरे 10-15 दिन निकल जाएंगे अगले महीने फीसें आएंगी क्या करूंगा स्कूल से पहले बच्चे उठाऊंगा फिर उसके बाद रात को रोटी की फिक्र में रहूँगा तो मैं तो रोज़ ही हूँ ना रोज़ अपने बच्चों को जाके देखता हूँ किसी की अब चीज़ें हैं कोई कह रहे हैं कल की बात है कि कापी पेंसिलें ख़त्म हुई हैं जी वो लेके दें मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं अभी 2-4 दिन गुजरे हैं जो है कोई पास कोई 10-15 हज़ार वो खर्च हो जाएगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि मोटरसाइकिल बेचूंगा कोई 10-15 दिन गुजर जाएंगे उसके बाद मैंने क्या करना है मुझे इस चीज़ का तो पता ही नहीं है खुदा न खास्ता बच्चे को स्कूल से हटाना पर हटा देंगे भाई तुम क्या करेंगे कौन देगा मुझे पैसे कौन देगा मुझे बताएं मेरे बच्चे पढ़ते हैं मेरे बच्चे फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं मेरे पास तस्वीरें पड़ी हैं मैं अपने बच्चों की फर्स्ट पोजीशन होल्डर है मेरे बच्चे स्कूल में स्कूलों में बोर्डों पे तस्वीरें लगी हैं उनकी बड़ी अच्छी तालीम हम उनको दिला रहे हैं माशाल्लाह खुद घर में पढ़ाती हैं मेरी मिसेज उनको लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि अब क्या बनना है हमारे साथ हम तो अपने बच्चों को हाकल हाल खिला रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये छोड़ दो हाकल हाल पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता
थे ये परिंदे, इनको आज़ाद कर देते कोई दुख ना था, इनको आज़ाद कर दे और ये मरते ना, हमारे ऊपर अजाब ना होता। ये देखे परिंदे, इतना जितना भी मेरी दुकान याद निकालेंगे परिंदे ही निकलेंगे, ये सब हर जानवर निकलेगा। ये देखे इनको आज़ाद कर दे तो कोई दुख ना होता कि चलो यार ये आज़ाद हो चुके हैं, तो सब्र आ जाता है इंसान को, इंसान मारता भी है सब्र आ जाता है। लेकिन ये बेजुबानों को इस तरह ना करते हैं जैसे इन्होंने किया, कोई आसरा नहीं छड़िया कि असी यह कम कर लिया कर, जिथे जाने तो बर्बादी है जानवरों की। कोई परिंदा अच्छा दस देंगे कि एक दिन पहले आप निकाल ले यहाँ से, असी परिंदे ही बचा लेंगे कि चलो कम से तुसी असी नहीं बचा सकते, घर सुते पे सा तुसी आज़ाद ही कर देते बेजुबाना देते ना। एडा होता कबूतर के नीचे दफन कर दी थी, हर चीज़ तबाही बैठती थी। सुबह आए एक तीला नहीं लपा, कख नहीं लपा, कोई चीज़ नहीं। 12 बजे में आया, 12 बजे आके देख रहा कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान। तो ये हाल इन्होंने किया। अभी तो 1-2 ही महीने ना, जब हफ्ता ठहर जाए गिरेंगे ये भूखे फाके मरेंगे, पता चलेगा फिर कि कैसे हाल होता है इनका, गरीबों का क्या हाल इन्होंने किया है, रातों रात में तबाह कर दिया। अब किधर से लाएंगे, किधर कमा के बच्चे पालेंगे, कुछ जराम तो नहीं कर सकते। इन्होंने रात के 4 बजे ऑपरेशन किया, हम तो सो रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है क्या होता है क्या होना इधर, और ये आपके सामने है। वो खाकसा कर दिया इन्होंने, बच्चे कैसे पालेंगे, अब बच्चों को कैसे खिलाएंगे, खुदा ही है ना। आपकी यहाँ दुकान थी? मेरी अपनी साथी दुकान, जी जी। मैं किराया आपको दिखाइए, पर्ची हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। ये किराया भी देते हैं हम, हर जो काम है ये देख ले, महकमा काफ के किराएदार थे, ये देख ले पर्ची हर चीज़ देते हैं इनको, किराया भी हर चीज़ क्लियर है। ये देखे तो बिजली के बिल, गैस के बिल, ये कैसे? मैं कहता हूँ अब तो खुदा ही है ना, वो भी देते थे, बिजली के बिल भी, गैस का। अब तो समझ से बाहर है बात। अब तो मैडम को ये चाहिए बस इन गरीबों का कुछ सोचे, किराएदारों का, जो दुकान मालिक मकान इनका देखे, को आगे रोज़गार करें, आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही दुआ खुदा ताला से, दाता हजूर की नगरी के पास बैठे हुए कि इंसाफ हो, या बड़ी ताला इंसाफ कर दे। बस जुमे में भी अल्लाह दुआ से में भी इंसाफ ये- ना मांगे, इंसाफ हो गया, कोई नहीं बचना। हाँ ठीक है, अल्लाह तो है, खुदा तो है ऊपर, ये माँ बनी है, माँ बन इंसाफ के हो गया दिखाए, ना, बिल्कुल। बुरा ना मानिएगा ना, फिर मैं भी नहीं बचना फिर। कोई बात नहीं, इंसाफ उसको क्या इंशाल्लाह। रहम करते हैं, इंसाफ ना मांगे। जी बिल्कुल, अल्लाह अपनी रहमत करे, ये इनको हाँ। इनको चाहिए रहमत करे अपनी मखलूक पे भी, और हर गरीब आदमी किराएदार जो कुछ भी सब रुल गया, मारे गए हैं। अभी तो 1-2 ही है ना, तो ये 2-4 दिन और ठहर के तो कई आ जाएंगी दबा के। वो क्यों? वो इसी तरह भूख से मारे हैं, जो सुबह से आते थे रात को कमा के जाते थे खाते थे, वो तो मर जाएंगे, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। कई इनमें अभी फ़ोन आ रहे हैं, कई आदमी जो है बीमार है, उनके बच्चे घर में बताते नहीं है उन्हें कि ये जो है बीमार है मेरे पापा, या कुछ है, वो कहते हैं मर जाएंगे, हमने बताया तो। यही हिसाब है, इन्होंने रातों रात में इतना कम हुआ है। काश हम यहाँ होते, शायद नीचे ही दब जाते, हम मौके पे थे नहीं। मेरा अपना यहाँ पर 5 दुकानें थी, मेरा किचन था, देखें थी, बीच में चावल थे, सब कुछ गया। सर लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हमने इन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया था। भाई 1 मिनट, अब देखिए मेरी बात गौर से सुने। जुम्मे वाले दिन रात को एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार की कॉल आती है, जी इमरजेंसी है अभी आओ, इमरजेंसी है अभी आओ। हमारे सदर साहब वहाँ गए हैं, उन्होंने कहा जी आपकी डीसी के साथ मीटिंग है पीर वाले दिन, डीसी को जाके मिलो, मार्केट का मामला तेज़ हो गया है, मार्केट उन्होंने गिरा देनी है। मंडे वाले दिन की मीटिंग रखी है, हम डीसी के पास गए हैं, डीसी साहब आगे से मिले ही नहीं, डीसी साहब आगे से मिले ही नहीं। उन्होंने कहा जी ट्यूसडे की मीटिंग हो गई है। ट्यूसडे वाले दिन गए हैं, 3 बजे वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने 5:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे हैं। डीसीओ साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी 2 दिन का टाइम है, इनके साथ बैठ के ना पैचअप करें, जैसे भी होता है इसको क्लियर करें। वहाँ एलडीए और टीपा के जो चेयरमैन थे, जो भी थे, वो वहाँ बैठे थे, उनके साथ डिस्कस हुई है। उन्होंने कहा जी आप मुआवजा ले लें। हमने कहा ठीक है, हमें मुआवजा मंजूर है, हमें मुआवजा दे दें, मलबा दे दें, हम जाके हमें जगह दे दें, हम वहाँ जाके खुद दुकानें बना लेंगे। हमने कहा हम वहाँ जाके खुद दुकानें बना लेंगे, हमारे सदर साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी सुबह 12 बजे ना आप आ जाएं, हम आपकी डीजी एलडीए के साथ मुलाकात करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और उसी दिन जिस दिन मीटिंग हुई है, उसी दिन रात को 3 बजे आए हैं, और उन्होंने इतला दी है कि जी हमने दुकानें तोड़नी है। जिसको इतला नहीं हुई वो नहीं आया, उसका सामान नीचे ही खत्म हो गया। उनकी तरले मिन्नतें वास्ते करते रहे जो लोग यहाँ मौजूद थे।
उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਾਲਜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਖਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। आप इनके हाँ जी। जज्बात की कब से क्या क्या इनकी जो चीनी बनाने वाली कढ़ाइयाँ थी वो भी गई, जो चीनी पड़ी थी स्टॉक में वो भी गई, कारखाने का जितना सामान था सारा ले गए हैं। और ये फालिज के मरीज हैं। फालिज के मरीज हैं, बोल नहीं सकते सही तरह। 6 दुकानें इनकी, 6। एक बेटा बाहर होता है, खुद बीमार हो गए हैं, कोई करने वाला नहीं है। और अभी जो काम किया है उससे तो ऐसे ही लगता है जैसे वो चाहते हैं कि ये भी मरते साथ ही। 50 सोडे चीनी के इन्होंने उतरवाए थे। भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बंदे है ना, बेबस है ना, बेबस हैं, बस नहीं चलता हमारा। किसके आगे पीटे। जो भी अफसर आया उसने कहा जी मुझे सुबह 9 बजे से पहले क्लियर चाहिए। बताएं, बस सब्र करो। मैंने एक सेकंड। बड़े महकमा औकाफ के किराएदार हैं और आज वो कहते हैं हमें कब्जा ग्रुप है। 33 साल से किराएदार हैं हम लोग, 33 साल से। प्रोड्यूसर साहब दिखाएं। रहमत अली नाम है इनका। भाई साहब आपकी तकलीफ़, आपके जज्बात और आपकी जो इस वक्त कैफियत है ना, मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपके लिए आसानियों वाले मामलात करे। इस उम्र में इस बीमारी के साथ आपको बाजू का इसका पाँव भी फाल 3 दफ़ा हो गया। फालिज क्या है? शुगर के भी मरीज हैं। ये 3:30 बजे के आगे बैठे हुए हैं कि शायद हमारी को सुनने के लिए आ जाएगा। 3 दिन हो गए, आज तक कोई भी नहीं आया अभी तक पूछने किधर बैठे हुए हो, किस तकलीफ में हो, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, भूखे हो, बच्चों का क्या हाल है। कोई नहीं आया, कोई इदारा नहीं आया सिवाय मीडिया के। आप मीडिया के तवज्जुह से ही हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक किसी के कानों तक पहुंची है। अगर पहुंची होती तो शायद को हमारी दादरसी करने के लिए आ जाता। रोटी खोल लेती तो खिदमत करते पे ने। ए देखो ए खिदमत सारे बेरोजगार कर दिता ने फड़ के ते कहंदे जी बड़ा कुछ कीता वाह भी। सर वही कहते हैं ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। किया काम कीता, काम कीता कि हस्ते गुरबत मुकाई है, मुल्क डिफॉल्ट होने तो बचाया। गुरबत ते होई है हुन। गुरबत दुआ भाई क्या बात है, बहुत अच्छी गल है भी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। नाबदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादहु फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटी मरियम से गुजारिश है कि इन गरीबों को मुतबादल रोज़गार फराहम किया जाए। शहबाज शरीफ साहब से, बाबू साहब से भी गुजारिश है जो ये गरीब है ना, इनके मुतबादल रोज़गार का इंतज़ाम किया जाए। बहुत मेहरबानी। ठीक है। इस वक्त मीडिया को इनकी ज़बान बनना चाहिए। आपकी मेहरबानी है। हमारा भी किसी सियासी पार्टी से तल्लुक है, उससे हट के बात कर रहा हूँ। इधर अभी आगे इन्होंने शुरू करना है ऑपरेशन। इनको इन सबको मुतबादल मिलना चाहिए। शहर में खूबसूरती आनी चाहिए, लेकिन कब्रिस्तान बना के नहीं खूबसूरती आनी चाहिए। लोग बेरोजगार में, मेरी भी आगे दुकान है, हमें ये सुन रहे हैं कि आगे भी ये कर रहे हैं। इनकी मेहरबानी है, जो भी इनके करते रहते हैं उनको आवाम का ख्याल करना चाहिए। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह बनने लगी है। जब ये और इनके बच्चे यहाँ से गुजरा करेंगे वो क्या सोचेंगे कि ये नीचे हमारा कब्रिस्तान है, ऊपर इतना खूबसूरत पुल बन गया। तो ये बड़ी ज़्यादती है। आप लाहौर को खूबसूरत बनाएं, लेकिन आवाम की कब्रिस्तान बना के नहीं। हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ तामुन करते हैं, आए सब कुछ करें, लेकिन आवाम का भी कुछ सोचें। मेरे भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, आगे सारी मार्केट तोड़ने का प्लान बन रहे हैं। इनको मुतबादल दे दें, हम इनको जिंदाबाद कहेंगे। तो बात ये है कि जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। हम अपनी किसी सियासी तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, हम अपनी रोटी की बात कर रहे हैं कि ये देखें इनके साथ क्या कब्रिस्तान बन गया। अच्छा देखें, चिड़ियाँ, परिंदे, बिल्लियाँ नीचे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे बड़ा जो सदका जारिया है वो चिड़ी का और बिल्ली का है, और उन्हीं को मार दिया इन लोगों ने। ये बहुत है, ये बहुत
हो रहा है। पूरी दुनिया लोगों को, अपनी आवाम को पैसे देती है कि जाएं आप अपना काम करें। तो ये कैसी हमारी हुक्मरान है कि जिन्होंने हमारा रोजगार ही छीनने की प्लान कर ली है। खुदा के वास्ते लोगों को खूबसूरत बनाएं, लोगों के कब्रिस्तान न बनाएं। आपकी मेहरबानी है, मीडिया को चाहिए इस वक्त हमारी इन सब की ज़बान बने। आप हर लम्हा यहाँ पर आएँ। लोग यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है, ये जिस तरह ही बैठे हुए थे, इनको पहले एक जगह बना के देते, उसके बाद ये खुद ही चले जाना तो लोगों ने वहाँ पे। आपकी मेहरबानी है, मीडिया जिंदाबाद है। हमेशा मीडिया ने आवाम की बहुत ज़्यादा खिदमत की और तावन किया है। आप हैं ही हमारे लिए। और ये जो आगे तोड़ने लगे हैं तोड़ें, लेकिन उनको मुतबादिल पहले दे दें। ये जो नजायज जवाज़ात की बात कर रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि चाबी के बदले चाबी मिलेगी आप लोगों को। 1 मिनट का नुकसान नहीं होगा। इन्होंने हमारी सारी उम्र की जमा पूंजी इन्होंने खत्म कर आपको उनके साथ ये पता नहीं कौन सा वादा कर दिया मियां साहब की बात की इन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी। इतने गए गुजरे हैं मियां साहब आप इस दुनिया में कि उनकी बेटी क्या, उनका भाई क्या, उनके भतीजे क्या, कोई उनकी बात नहीं मान रहा। बिल्कुल। उनके जो पीए हैं वो तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने हमें टकसाली गेट पे बुलवाया है। उन्होंने आके हमें 7 दुकानों की चाबियां दिखाई हैं जी, ये आपके लिए बन रही हैं। और ये नए प्रोग्राम में हमें आगे हमारे कारोबारों को उन्होंने तहस नहस कर दिया। लहर प्रोग्राम से इन्होंने पता नहीं कहर प्रोग्राम में डाल दिया हम लोगों को। बच्चे हमारे रात को भूखे सो रहे हैं। 3 दिन से हम इधर आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। डेली बेस पे कमाते थे, डेली बेस पे खाते थे। पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच के ये कदम उठाया। इन्होंने अगर कुछ करना भी था हमसे पहले हमें नोटिस तो देते। रात को 4 बजे आके कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इधर। हम लोग इधर आए हैं, हमें किसी ने इतला कर दिया जी आपकी यहाँ मार्केट जा रही है। हमने कहा नहीं यार, हमारी तो अभी इनसे बातचीत होनी है, नेक्स्ट डे हमारी मीटिंग है। उन्होंने कहा आप इधर आ जाए, इधर आके देख लें, लेकिन कुछ भी नहीं। उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। जिंदा जानवर दिए, बंदे मार रहे हैं ये लोग। उन्होंने प्यार कर देना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है ना। अब प्यार इनका हमारे लिए बहुत ज्यादा है इनका। हम लोग जिंदा की कह रहे हो भाई जान जो कब्र निकलनी है। भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਰੌਨ ਵੀ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਗੁੱਸਾ ਕੀ, ਫਰੌਨ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸਿਆ तक नहीं। माँ ऐसे करती है, ये देखे ये माँ ऐसे। अगर इन बुजुर्गों की दुकान उनको चाहिए 3 महीने पहले इनको दुकान दे। 3 महीने पहले इनको दुकान दे। किधर हम बुला रहे यासीन साहब, कभी एक से हाथ बुला रहे हैं। वीडियो वाला पीछे है। अस्सलाम वालेकुम जी, अब इधर नजर आया आपको? कोई नजर नहीं आया जी, किसी ने हमें आज कुछ हमजा शबान नजर आ रहे हैं? कोई नहीं आ रहा। ये उनके हल्के वो हैं। आवाम की खिदमत कर रहे हैं शबाना रोज। ये हिदमत है। इधर देखें, ये हिदमत है। अब इन्होंने गैस का बिल भी देना है। व्यूअर्स बात ये है, ये तो बेचारे पहले ही दुखी हैं। इनके घर के मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, दुकानें इनकी मिसमार हो गई हैं। लीगल है इलीगल वे है वो डिबेट ही नहीं है। जिसका घर, जिसके रोज़ी के मामला डिस्टर्ब हो जाए उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। उसके साथ मेरा ख्याल है ये कहना कि नहीं जी सब सही है, ऐसे है वैसे है, वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। उसके साथ हम मोहब्बत करें, उसको मत कहें कि ठीक हुआ है। अल्लाह अपने बीबी अलैहिस्सलाम के साथ कि हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।